developments regarding the row over the NEET irregularities. Now, taking a serious view of the matter, Union Education Minister Dharmendra Pradhan has assured that no one, including officials of the National Testing Agency, would be spared if irregularities were found. He's further stated that interests of all students who took the test would be protected. The government is looking at reforms to ensure that such problems do not occur in the future. Remember, viewers, there has been a war of words that has broken out over the NEET. We've seen students come out to the streets to protest across cities in India, whether it's the national capital, Ranchi, in Jaipur, in Bhopal, Indore, in Chennai. Students have taken to the streets to make their plight known. Meanwhile, the opposition has also wasted no time to trade barbs with the centre. Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Tejashwi Yadav, Kapil Sibal, Saurabh Bharadwaj have all hit out at the centre. In fact, Priyanka Gandhi earlier slammed the education minister for his statement and has called him arrogant as well. Rahul Gandhi stated he will take it up in the parliament. Amid this political cacophony over the NEET, what is the need of the hour is that justice should be meted out to the students who have been wronged. We know of paper leak cases that have come to light. Trails worth crores of rupees have come to light in Godhra and Bihar as well. Meanwhile, my colleague has had an exclusive conversation with NEET aspirants and their families over how exactly they are feeling at this moment. Let's listen in. Is taking its due turn, where there has been a lot of updates that has been going on. Definitely there has been a lot of uproar also happening in terms of the social media, where there has been a very social media outrage also among people, where they are boycotting the very NTA also. And even the Supreme Court, it became such a big of an issue that that there have been protests going on. Even Supreme Court took the decision to the fact that there will be another re-examination that will be happening on June 23rd. So definitely a situation, a problem that was happening, where this alleged cheating scam, this paper leakage scam that happened, where many students' futures got jeopardized, where they were also left helpless because they have spent years after years in preparation for the fact that they need to be doctors, they need to fulfill their dreams and to also serve the people. But again, due to this very alleged cheating scam, there have been many students who have been deprived of their basic rights. And also we are joined by Nirnay, who is also a NEET aspirant. Nirnay, my very first question to you would be, from when are you preparing? कब से आप prepare कर रहे हो? कितना दिन हो गया? कितना साल हो गया? And how did you feel when you got to know about the fact that ये scam आया है, ये paper leak हुआ है? Sir, I am preparing from my 11th. That is 2 years past. मैं अपनी 11th क्लास से प्रिपेयर कर रहा हूँ एक एग्जामिनेशन के लिए. सर, जब मेरे पास ये न्यूज़ आती है कि पटना में पेपर लीक ऑलरेडी हो चुका है, देयर आर सेंटर्स ऑफ गढ़ोत्रा जहाँ पे पेपर लीक हुआ है एक बार, वहाँ से जब न्यूज़ आती है, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग फॉर अस, क्योंकि हम एस्पिरेंट्स हैं, हमको उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर बहुत होप होती है. हम बहुत होप से वो एक एग्जामिनेशन दे के आते हैं. हम अपनी बहुत चीज़ें उस 2 पर्टिकुलर सालों के लिए, वो बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करते हैं. पार्टीज़, घूमना दोस्तों के साथ, वो सब हम सैक्रिफाइस करते हैं उन पर्टिकुलर 2 सालों के लिए. हम वो 2 सालों के करने के बाद अगर हमारा एग्ज़ाम अच्छा भी जाता है, फिर अगर हम लोग ये न्यूज़ देखेंगे कि ऐसे ऐसे पेपर लीक हो गया है कहीं पे, या फिर कई बच्चों के पास ऑलरेडी 4th में रात को पेपर था, तो इट इज़ रियली डिसहार्टनिंग फॉर अस. हमारा मोरल एक बहुत बेसिक लेवल पे डाउन हो जाता है ये सब चीज़ें देखने के बाद. And are you in favor of re-NEET that's going to happen? And if you're in favor, what are the advantages or disadvantages according to you? Sir, yes, I am completely in favor of re-NEET, as जो वो रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि पटना में पेपर लीक हुआ, जहाँ जहाँ पे रिपोर्ट्स अगर प्रॉपर FIR फाइल्ड है, यानी पेपर बाहर आया था. अगर वो पेपर बाहर आया था, सबके पास वो पेपर था ऑलरेडी, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग दैट पेपर. तो अगर रीनीट होता है, देयर वुड बी एडवांटेजेस कि NTA को बहुत अपना जो पेपर का सिस्टम है, लाइक चेन ऑफ कस्टडी जो होती है, उनको बहुत संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि NTA के ऑफिशियल्स खुद न्यूज़ में आ रहा है कि NTA के ऑफिशियल्स खुद इन्वॉल्व थे. तो उनको चेन ऑफ कस्टडी बहुत ढंग से मेंटेन करनी चाहिए इस पर्टिकुलर एक एग्जामिनेशन के लिए. इसके एडवांटेजेस जो मैं देखता हूँ, एक फेयर कॉल हो जाएगा सारे स्टूडेंट्स के लिए. बट
दैट ऑल्सो कि डिसएडवांटेजेस ये होगा कि ऑलरेडी जो बच्चे मेहनत करके स्कोर लाए हैं उनके लिए देर इट वुड बी अ डिसहार्टनिंग मोमेंट। Then scores might even lessen, I guess. लेसन है सर, क्योंकि एकदम से आप पेपर के बाद आप रिलैक्स होके छोड़ देते हो तो वो स्कोर कम हो सकते हैं। बट सर ऐसा हो चुका है पहले भी कि रीनीट हुआ है जिसकी वजह से कट ऑफ्स गिरी हैं, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मीडियोकर स्टूडेंट्स जो एवरेज बच्चे हैं बीच में, उनके लिए भी काफ़ी ये चीज़ बढ़िया रहेगी कि कट ऑफ गिर जाएगी और कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे अभी कट ऑफ इज़ रीचिंग 660 650, वो थोड़ी कम हो जाएगी। And which medical college are you know, dreaming to get into? Sir, I am planning or dreaming to get into Maulana Azad Medical College, which is in New Delhi. And you know, preparing, like you said, you were preparing from class 11. Is there any specific thing that you've left or sacrificed to the fact that you had to prepare for it? Sir, there is a very इमोशनल मोमेंट कनेक्टेड टू माई हार्ट इन दिस थिंग। लाइक संडेज़ को हमारी कोचिंग में पेपर होते थे एंड आई एम अ नेशनल लेवल प्लेयर, तो उसी केस में क्या होता था कि संडे वी यूज़ टू हैव आवर प्रैक्टिस मैचेस। सो मैं अपने पेपर देने के लिए कोचिंग में आई यूज़ टू आइदर मिस देम और आई हैव टू लीव हाफ एन आवर अर्ली, मतलब हाफ एन आवर मेरे को जल्दी जाना पड़ता था अपनी गेम छोड़ के सिर्फ वो पेपर देने के लिए। तो स्टिल आई सी दो सैक्रिफाइसेस कि वो आधा घंटा जो मैंने छोड़ा, माइट अगर मैं और प्रैक्टिस करता और अपनी गेम पे काम करता तो आई कुड हैव गॉन बेटर, बट स्टिल नीट इज़ माई रियल ड्रीम, तो मैं उसी पे ज़्यादा काम करना मैंने बेटर समझा। And my very last question to you would be, what do you demand from the government or from the people? सर माई डिमांड्स आर नॉट लाइक कि मुझे ये दो वो दो, कट ऑफ कम करो। इट्स लाइक आप प्लीज़ एक फेयर कंडक्टिंग सिस्टम रखिए, फेयर चेन ऑफ कस्टडी रखिए गवर्नमेंट से। आप क्वेश्चन में आप रीनीट का अगर कर रहे हैं 1563 बच्चों का ना लेके जिनको ग्रेस मार्क्स मिली है, आप सबका एक अगर रीनीट हो सकता है, इट्स रियली अपील कि अगर सबका रीनीट हो सकता है। इट वुड बी लाइक एनटीए के लिए इट वुड बी टफ, बट उनको लेना पड़ेगा ऑन मोरल ग्राउंड्स। तो दैट वुड बी थिंग दैट आई एम डिमांडिंग बस। और बाकी कट ऑफ्स हैं, पेपर का लेवल जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा बस। और देयर इज़ ओनली वन डिमांड दैट वी शुड गेट रीनीट। So we are also joined by Nirnay's parents. सर आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे। एक जो बच्चा प्रिपेयर करता है क्लास 11 से वो प्रिपेयर कर रहा है, उसके सैक्रिफाइस तो होते ही है। आप एज अ पेरेंट, मैम आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, एज पेरेंट्स आपका भी सैक्रिफाइस रहता है, तो कितना डिसहार्टनिंग आपके लिए भी था जब आपको पता चला कि ऐसा कुछ चीटिंग स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है? आप दोनों से जानने का कोशिश करेंगे। सर मेरे बेटे का फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो हम एज अ पेरेंट हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर जाए। और जहाँ तक इसकी रैंक का सवाल है, ही इज़ गॉट द बेटर रैंक। आई डोंट थिंक सो कि 540 या 650 से कोई फ़र्क पड़ता है, बट ही स्कोर द बेटर रैंक। इसको जो इसकी रैंक आई है इसमें इसको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाना चाहिए था। बट व्हाट हैज़ डन कि अब जो कट ऑफ ही इतनी गई है, जब 720 में 720 पाने वाले ही इतने बच्चे हो गए हैं, वन रैंकर ही इतने सारे हो गए हैं, तो उसके बाद मेरे बच्चे का तो नंबर ही नहीं आएगा। तो वी आर नॉट फाइनेंशियली सो स्ट्रॉन्ग कि हम इसको प्राइवेटाइज करवाएं, तो वहाँ पे बट फीस बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है। तो इस चीज़ से हाँ, लिटरली आपने जैसे सेक्रीफाइस की बात बताया, हमने भी सेक्रीफाइसेस करे इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ के लिए। हम कहीं नहीं जाते थे, हम कहीं भी नहीं कोई पार्टी हमने अटेंड नहीं करी, कोई फैमिली फंक्शंस हमने सेक्रीफाइसेस करे हैं, उन सब चीज़ों को भी हमने सेक्रीफाइस किया। इसकी पढ़ाई सफ़र ना करे, इसकी वजह से हम अपनी जॉब में भी कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। कभी छुट्टी ले ली, इसके पेपर्स होते थे तो वहाँ भी इसको दिलवाने लेके गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कहीं इनके अपार्ट फ्रॉम दिस स्कूलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। हमने इसके इंस्टीट्यूट्स के भी अगर पेपर्स होते थे वहाँ भी हमने फ़ीस पे करी है, सब कुछ पे करा है, जो कि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, तब भी हमने इसको करवाया है जैसे तैसे करके। तो ये चीज़ अब उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो उसको बच्चों को सीट मिलती है, तो डेफिनेटली डिसहार्टेड तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी है वो चीज़। आप ये अगर कोई भी आप फ्यूचर देखें तो बच्चा ही सफ़र नहीं करता इन चीज़ों में, पेरेंट्स भी साथ साथ सफ़र करते हैं। मैम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, हाउ डिसहार्टनिंग वाज इट फॉर यू एज वेल जब आपको ये पता? सर एक्चुअली में यहाँ पे यही बात आ जाती है, जैसे इन्होंने बोला, अभी निर्णय ने बात बोली कि एक फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए था, राइट। अगर नीट का पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है, राइट, तो दैट मीन्स एक जगह पे हमने पकड़ लिया, हो सकता है और कई जगह पे लीक हुआ होगा। ये एनटीए का एक आप ये कह सकते हैं कि उनकी तरफ से एक लूप होल तो है ना कि वो लीक हुआ, राइट। जब वो लीक होता है तो जो बच्चे फेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चा रात के 2 बजे तक सो नहीं रहा है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना है, सुबह 4 बजे उठ रहा है, उसकी नींद का कोई टाइम नहीं है। एज अ मदर मुझे भी उठ के रात को 12 बजे 1 बजे देखना होता है कि उसने कुछ खाया नहीं खाया, वो इतनी देर से पढ़ रहा है, 2 बजे तक वो पढ़ रहा है, इवन वो खुद से कर लेता है, बट स्टिल वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग ना। तो अगर ये लूप होल हुआ है तो
एक जगह पे तो पकड़ा गया, बाकी जगहों पे हो सकता है कई ऐसी जगहों में जहाँ पकड़ा ही नहीं गया। तो द थिंग इज़ कि अगर रीनीट हो जाता है एक बार, तो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन होगा कि हमारे बच्चे ने एक फेयर एग्ज़ाम दिया है, वो ट्रू बैटल में उतरा है। द थिंग इज़ कि डजंट मीन कि आपने जीता या हारा। द थिंग इज़ आप ट्रू बैटल में तो हैं, जहाँ पता है पीछे से सपोर्ट चल रहा है, डमीज़ खड़े हैं जो बैटल में हम दिखा रहे हैं, क्योंकि दे आर लाइक अ डमी ना, दे आर नॉट मतलब वो इतने कुछ पता चला है कुछ जगहों पे जहाँ 27 बच्चों ने आई थिंक सो दिया था, बट उसमें से 4 ही पास हो पाए, बाकी फेल हो गए। दैट मीन्स वो उतने प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, और उनके पेरेंट्स ने ये सोचा कि मनी दे के उनको वो सीट दिला दी जाए। बट द थिंग इज़ कि उन्होंने रियल बैटल तो जिया ही नहीं, और लाइफ का रियल बैटल यहाँ ख़त्म नहीं होता, आगे बहुत सारी बैटल्स इनको जीतनी है। लेकिन अगर फर्स्ट बैटल में ही बच्चों को पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है वो फेक है, ये गलत है, एक फेक कंपटीशन में आप उतर रहे हो जहाँ पता ही नहीं है कि हम जीतेंगे, वहाँ तो पता ही है जब बाकी लोग चीटिंग करके आ रहे हैं तो ऑब्वियस है वो हारेंगे। तो एज अ पेरेंट अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है ना ये, कि मेरा बच्चा जो रात के 2 बजे तक पढ़ रहा है, और एक बच्चा जो मूवीज़ भी देख रहा है, मस्ती कर रहा है, उसके पेरेंट्स उसको पबिंग के लिए अलाउ कर रहे हैं, सब कुछ बच्चे कर रहे हैं, सिर्फ पेरेंट्स के ज़रा से पैसे की वजह से उनको सीट मिल रहा है, राइट? वो चीटिंग करवा पा रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो रियल मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का क्या? एक किसान जब फसल बोता है तो वो बहुत चीज़ें उसमें डालता है, उसमें खाद डाली जाती है, उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाता है, उसको पॉजिटिव चीज़ें दी जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे बचाने के लिए फसल को रखा जाता है। हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही रखते हैं, उसको जो भी चीज़ें चाहिए, उनको बुक्स चाहिए, उनको मटेरियल चाहिए, उसको जाना है, आना है, उसको कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें हम उनको दे रहे हैं तो हम चाहते हैं ना कि वो फसल भी अच्छे से ग्रो करके बाहर आए, लेकिन उसमें हमारे बच्चे का कोई कसूर नहीं है ना, क्योंकि अगर वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, या उसको रैंक नहीं मिल पा रहा है, या उसको सीट नहीं मिली है, तो उसमें उसका क्या कसूर है? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.